Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 3rd, which is about our body, a living machine. Okay? So student, आज हम अपनी body के बारे में discuss करेंगे. The various organ system which are there in our body. Okay? We are going to discuss about that. See, human body is like a machine. A machine has different parts and each part has a special function. In the same way, our body also has different organs to perform various functions. A body can be fit and healthy only if all its organs work properly. Okay? So student, human body क्या है? एक मशीन की तरह है. एक मशीन के जैसे different parts होते हैं and हर एक part का एक special function होता है. Similarly, हमारी body में भी different organs हैं जो कि various functions perform करते हैं. And एक body जो है एक fit and healthy body तभी कहलाएगी अगर उसके सारे organs properly work कर रहे हैं. Okay? Human body is made up of cells, similar type of cells joined together to form a tissue. A group of tissue joins together to form an organ, and a group of organs join together to form an organ system, which performs special function like writing, eating, playing, etc. Okay? So human body किसके बनी है student? Cell की बनी है, and बहुत सारे cells जो एक जैसे होते हैं यानी कि जिनका structure and function same होता है, वो सारे cells join होके क्या बनाते हैं? एक tissue बनाते हैं. Similarly उसके बाद फिर वो सारे tissues, एक group of tissues जो same in structure and same in function है, they all together form an organ. एंड एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक साथ ही मिलकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम. ओके? एंड यही ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं लाइक राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा. ओके? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सेल. ओके? एंड ऐसे बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप होगा इट विल नोन एज टिश्यू, एंड बहुत सारे टिश्यूज का जो ग्रुप होगा इट विल बी नोन एज ऑर्गन. ओके? चलो, नाउ there are 8 major important system in human body. Human body के अंदर 8 important systems है. That is skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory or breathing system, circulatory system, excretory system, nervous system and reproductive system. So we are going to discuss about all these 8 major systems of human body in a detailed manner. So number 1 we have skeletal system. So this system performs the frame of a body. It gives shape and form to the body. It protects our other delicate organs. This is a system that allows us to move and provides anchorage for our muscles too. Okay? And the skeletal system is made up of both. So ये है हमारा human skeletal. ठीक है? System, ये जो human skeletal system है, ये क्या करता है? ये हमारी body का structure, framework बनाने का काम करता है. हमारी बॉडी को शेप एंड फॉर्म प्रोवाइड करी जाती है बाय द स्केलेटल सिस्टम ओनली. उसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के इनर डेलिकेट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है. एंड यही वो सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी मूव कर पाती है एंड हमारी मसल्स को भी एंकरेज मिलती है. सो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम स्टूडेंट्स किससे बना है? हमारी बोन से बना है. एंड व्हेन वी आर बोर्न वी हैव अराउंड 350 बोन्स. जब हम बोर्न यानी कि जब हमारा बर्थ होता है एक स्मॉल बेबी का, तो उसमें अराउंड 350 बोन्स होती हैं. But as we grow up, some of the bones fuse or join together to form a bigger bone. So by the time we are adult, we have about 206 bones in our body. लेकिन जैसे जैसे एक ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग की बॉडी ग्रो करती है, कुछ बोन्स जो हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं, फिर जॉइन होकर एक बिगर बोन बना लेती है, बड़ी बोन बना लेती हैं. सो एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी के अंदर अराउंड 206 बोन्स होती है. ओके? चलो, नाउ the bones join with each other at joint. They are joined together by a smooth, shiny substance called cartilage. The bones are held together by strong elastic band of tissue called ligaments. And the bones are made up of hard tissues that are very strong. So जो bones है वो एक दूसरे के साथ joint है किस पे? एक joint के ऊपर. ठीक है? ये आपस में एक smooth, shiny substance के थ्रू joint होती है जिनको हम cartilage कहते हैं. बोन्स को एक साथ ही जो रखा जाता है वो कुछ strong elastic band of tissues के थ्रू रखा जाता है which are called ligaments. And bones हमारे हार्ड टिश्यूज से बनी है which are very strong. The next topic which we have is muscular system. The muscular system is made up of muscle. Muscular system किसका बना है? Muscles का बना है. More than 600 muscles are there in our body. Okay? Some muscles are attached to bones. The muscular system help us to move about and does different kinds of work. Proper exercise can make our muscles strong. So कुछ मसल्स ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं एंड ये मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ करने के लिए होता है एंड कुछ डिफरेंट एंड स्पेशल काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म करता है. अगर हम रेगुलर एंड प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी मसल्स जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. ठीक है? नाउ द थर्ड सिस्टम इन आवर बॉडी इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो व्हेन वी स्मेल फूड आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन. यानी कि स्टूडेंट जब जैसे ही हमें एक अच्छे फूड की स्मेल आनी शुरू होती है हमारे माउथ वाटरिंग करना स्टार्ट कर देता है यानी कि मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है.
एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन, यानी कि यहीं से डाइजेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाती है. सो बेसिकली डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी. सो डाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को चेंज किया जाता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में सो दैट उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, यूज कर सके. द फूड दैट वी च्यू मिक्सेस विद सलाइवा एंड बिकम्स सॉफ्ट, द फूड दैट गोज टू द स्टमक. सबसे पहले जो खाना हम च्यू यानी कि चबाते हैं वो किसके साथ? सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है एंड सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद वो सारा फूड कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है. देन in the stomach it mixes with the digestive juices. After about 4 hours of eating, the food goes into the small intestine. एंड फिर स्टमक में खाना जाने के बाद वहाँ स्टमक के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसके साथ वो हमारा खाना मिक्स हो जाता है. एंड अबाउट 4 आवर ऑफ ईटिंग, खाना खाने के अराउंड 4 आवर्स बाद क्या होता है? वो फूड किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. उसके बाद here the digested food is taken in by the blood and carried to the other parts of the body, and the undigested food goes to the large intestine and from there it is thrown out through the anus. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है वहां से उस फूड को ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है एंड सभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन से ये अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम आवर बॉडी. Okay, this is how the digestive system works. Now next we come to the respiratory system or breathing system. See, we breathe in and out through our nose. So student, हम किसके थ्रू? अपनी nose के थ्रू breathe in करते हैं and breathe out भी करते हैं, right? The nose, the windpipe and lungs help us to breathe. When we breathe in, air enters through our nose and goes into the windpipe and finally enter the lungs. नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ये हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में. जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं, एयर हमारी नोज के थ्रू एंटर करती है, फिर विंड पाइप में जाती है एंड फाइनली इसके बाद लंग्स में जाती है. द एयर वी ब्रीथ इज कॉल्ड ऑक्सीजन. जिस एयर को हम ब्रीथ इन करते हैं उसे ऑक्सीजन कहा जाता है. द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन एंड द ब्लड टेक दिस ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद जो ब्लड हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है वो ब्लड क्या करता है? उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ब्लड इस ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है. द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज अ वेस्ट गैस एंड वो एयर जिसको हम बाहर की तरफ ब्रीथ आउट करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस. इट इज अ वेस्ट गैस फॉर अ ह्यूमन बॉडी. Now next we come to circulatory system. The organ that make this system are heart, blood and blood vessel. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है स्टूडेंट? वो सारे ऑर्गन्स जो मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं, यानी कि वो ऑर्गन्स विच आर इंक्लूडेड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, दोज आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ओके, our heart is like a pump. It pumps blood to all parts of the body. Blood is a red liquid that flows in the thin tubes called blood vessel. अब ब्लड क्या है? हार्ट क्या है? हार्ट एक पंप की तरह है. हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद ये जो ब्लड है, अब ये क्या है? ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पतली पतली सी एक बहुत सारी नेटवर्क है ना, ट्यूब्स का, थिन ट्यूब्स का, विच आर कॉल्ड ब्लड वेसल. इन्हीं के थ्रू ये रेड लिक्विड फ्लो करता है विच इज नोन एज ब्लड एंड इस ब्लड को पंप किया जाता है बाय द ऑर्गन विच इज नोन एज हार्ट. नाउ blood carries food and oxygen to all the organs. The heart is made entirely of muscle which work all the time. अब ब्लड क्या करते हैं? ब्लड का काम है फूड एंड ऑक्सीजन को कैरी करना टू ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एंड हार्ट जो है पूरी तरीके से मसल्स का बना है जो कि ऑल द टाइम वर्क करती रहती हैं. Then next we have excretory system. Two bean-shaped kidneys, skin and lungs are the organs of the excretory system. Two bean-shaped यानी कि दो bean-shaped kidneys, skin and lungs जो है ये हमारे क्या है? ऑर्गन्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम के. वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम. बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो इसी सिस्टम के थ्रू थ्रो आउट किया जाता है. किडनी रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. किडनी क्या? किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में रिमूव करती है. स्किन हमारी बॉडी से वेस्ट को क्या? स्वेट की फॉर्म में रिमूव करती है, यानी कि जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको स्वेट की फॉर्म में स्किन के थ्रू रिमूव किया जाता है. एंड एट लास्ट लंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी ब्रीथ आउट एंड लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच इज अ वेस्ट गैस एज वी हैव डिस्कस्ड उसको थ्रो किया जाता है व्हेन वी ब्रीथ आउट. ओके, नाउ next system which we have is nervous system. This is the most complex and delicate system of all the system in our body. हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है उनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम ओनली. It is also the most important system of our body. It controls almost all other system of our body. And उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी बाकी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है. ठीक है,
That is made up of a brain, spinal cord and nerve. Nervous system किससे मिलकर बना है? Brain, spinal cord and nerves organ से मिलकर बना है. The brain is the most important organ of this system. It sends and receive messages to all parts of the body through the spinal cord and the various nerves. And सबसे important organ जो है system का है, that is brain. ठीक है, ये क्या करता है? Messages को send and receive करता है body के हर एक part तक, किसके through? Spinal cord and various nerves के through. Then the spinal cord is like a thick bundle of all over the body. Spinal cord एक thick bundle है, ठीक है, जो all over the body present है. Every part of the body is connected by a network of nerves to the brain. And हमारी body का हर एक part जो है brain के साथ connected होता है through a network of nerves. This network of nerves allows the brain to communicate with all parts of the body. And ये जो nerves का network है हमारी body में, जिसके through brain and हर एक body part connected है, इसी के through क्या कर पाते हैं? ब्रेन हमारा बाकी सारे बॉडी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाता है. ब्रेन सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व्स. ब्रेन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में फ्रॉम दी नर्व्स. एंड कुछ नर्व्स हैं जो कि वाइटल इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं टू द ब्रेन अबाउट टू सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड टच. अदर नर्व्स कंट्रोल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बाकी सारी नर्व्स जो है हमारी बॉडी के अलग अलग या डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं. And the brain controls the functions of these organs through these nerves. And brain का काम क्या है? इन सभी organs के functions को control करना through these nerves. The next system which we have is reproductive system. Reproductive system कैसी? There are special organs in the body for producing babies. They form the reproductive system. Men and women have different reproductive system. You will study about this system in higher classes. So student, हमारी body के अंदर क्या कुछ special organs होते हैं जिसके through एक living being क्या कर सकता है? Baby produce कर सकता है. एंड ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं. मेन एंड वुमेन दोनों के पास अपना डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. एंड इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव आवर सेंस ऑर्गन्स. अब हम सेंस ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं. सो द सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस एंड सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन. सो सेंस ऑर्गन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने सराउंडिंग का जो वर्ल्ड है उसको सेंस कर पाते हैं एंड मैसेजेस जो हैं वो सेंड कर पाते हैं टू द ब्रेन. सो हाउ मेनी? वी हैव बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन, दैट इज आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. एंड ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स एंड ऑल हैव डिफरेंट लुक. एंड इस 5 के 5 सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन के साथ नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है एंड सभी जो है डिफरेंट लुक या डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं. यू कैन सी दिस इज आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. Okay, activities like seeing, hearing, smelling, tasting and touching can be done with the help of brain. The brain catches the messages and help us to understand pictures, sound, smell, taste and feeling. जितनी भी एक्टिविटीज है लाइक सीइंग यानी कि देखना, हेयरिंग यानी कि सुनना, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, ये सारी एक्टिविटीज ब्रेन की हेल्प से ही मैनेज होती हैं. ब्रेन क्या करता है? मैसेजेस को कैच करता है एंड उसके बाद पिक्चर, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फीलिंग्स को अंडरस्टैंड यानी कि समझने में हेल्प करता है. ठीक है. So the chapter is completed. I hope you all must have understood the different organ system of a human body along with the sense organ. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.